Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is malnutrition. So here is a case of 15 months old boy is brought to emergency with loose motions, vomiting for the last 3 days. Diet is not adequate. On examination, his weight is 7.5 kilograms and mid-arm circumference is 11 centimeter. Length is 68 centimeter. Obviously, a malnourished child है. इसकी हर parameter is below normal. What is malnutrition? It is defined as a pathological state. It's not normal. It's a pathological state resulting from relative or absolute deficiency of one or more essential nutrients. It can be severe acute form in which there is severe wasting or bilateral edema. Severe wasting में आ जाता है children under 6 months of age marks visible severe wasting होती है और जो children हैं those who are older than 6 months of age, severe wasting is assessed objectively by anthropometric measures like weight for length, height, mid upper arm circumference. ये सब चीज़ें डिटर्मिन करते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर डिटर्मिन करते हैं कि इज़ 6 year आर ग्रेटर देन 6 month old child severely malnourished or not. And there is some grades of pitting edema. Most important thing in malnutrition is कि malnutrition होती क्यों. There are primary causes, there are secondary causes, and there are more. But we'll discuss primary causes. Failure of lactation, proper breastfeed नहीं मिलती, प्रॉपर वीनिंग नहीं होती है, अर्ली वीनिंग होती है, लेट वीनिंग होती है, जो बहुत ही लेट वीनिंग होती है या वीनिंग होती ही नहीं बिकॉज ऑफ आइदर पॉवर्टी रीजन्स और कल्चरल पैटर्न ऑफ फूड फैट्स. लाइक कुछ लोगों को जहन में बहुत होता है कि किसी की गर्म तसीर है, किसी की हॉट फूड है, कोई कोल्ड फूड है, तो बच्चों को देते ही नहीं, डाइट में एंटर करते नहीं. एग्स हो गए, बनाना सब ये देते ही नहीं. फिर लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, प्राइमरी केयर इम्यूनाइजेशन नहीं लगी होती, वैक्सीन नहीं लगी होती, बच्चे को डिजीज़ हो जाती है, डिजीज़ की वजह से प्रॉपर उसकी न्यूट्रिशन रहती है नहीं. एंड लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन हाउस, लो इनकम हाउसेस में ये मसले होते हैं. नाउ कम दिस सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन. सेकेंडरी कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, अगर एक बच्चे को माल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है, इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, क्रॉनिक रिकरेंट इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, मीजल्स, वुपिंग कफ, टीबी, यूटीआई is all leading to the secondary causes में malnourished बच्चा रह जाता है. Congenital causes, heart disease, UTI abnormalities, obstructive uropathy, congenital lung disease या obstruction to CSF, hydrocephalus है बच्चे. Malabsorptive disorder, GADS, lactose intolerance, celiac disease, cystic fibrosis. Cystic fibrosis की वजह से भी बच्चे की कोई भी जूस पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट नहीं हो रहा, प्रॉपर उसकी डाइजेशन नहीं हो रही है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटिस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, गैलेक्टोसीमिया, न्यूरोडिजेनेटिव डिसऑर्डर्स, इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म. So, we classify malnutrition on the basis of different methods: clinical signs, anthropometric measures, biochemical tests. Two clinical syndromes that are major. इसकी जो classification है marasmus और Kwashiorkor that we'll study. अब ये malnourished है बच्चा, इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स या अकॉर्डिंग टू वेरियस वैल्यूज़. इसकी गोमेस क्लासिफिकेशन है दैट डील्स विद वेट फॉर एज, Waterloo classification that deals with weight for height, and then there is Wellcome classification, there is WHO classification जो कि इस चीज़ को बहुत ध्यान रखते हैं हाइट फॉर एज को. ठीक है. then there is general classification that deals with anthropometric measure like mid arm circumference, skin fold thickness जो हम कैलिपर से मेजर करते हैं, क्वाक स्ट्रिप, ये मिड आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर करने के लिए इंसर्शन टेप. ग्रीन में है तो नॉर्मल है, येलो में है तो बच्चा जो है अंडर नरिश्ड है, थोड़ा सा अंडर नरिश्ड है, और यहाँ तो फुल स्वेली माल नरिश्ड बच्चा मिलेगा. माल न्यूट्रिशन की हम लोगों ने पढ़ा कि दो टाइप होते हैं, एक मरासमस और एक क्वाशोकोर. मरासमस का आप ये क्वेश्चन पढ़ें. द चाइल्ड 2 years ओल्ड, फीवर, इरिटेबल है, फीवर है, डायरिया है, वेट लॉस है एंड मसल वेस्टिंग है. 20 times इट्स मोर कॉमन इन क्वाशोकोर. इट अकर्स बिलो द एज ऑफ 2 बट इट कैन अकर एट एनी एज. What are the causes? Causes of primary malnutrition. Primary malnutrition, खाना सही नहीं मिला, पॉवर्टी की वजह से, फैमिली प्लानिंग प्रॉपर ना होने की वजह से, या जो कल्चरल नॉर्म्स हैं कि पहले जो है मेल मेंबर ऑफ द फैमिली मीट लेता है और फिर बाद में ख़वातीन बच्चों को मिलता है. यहाँ कुछ सेकेंडरी कॉजेज, डायरिया, वीनिंग पर्टिस को इन्फेक्शन होगी, या वीनिंग फूड प्रॉपरली नहीं मिला या सही से नहीं मिल सका. अदर कॉजेज, अदर सेकेंडरी फैक्टर दैट मे लीड टू अ पर्सन अ चाइल्ड फेसिंग लाइक दिस. इसकी बहुत ज़्यादा मसल वेस्टिंग हुई पड़ी है,
इसका मंकी फेस या कह लो ओल्ड मैन फेस लग रहा है, और रिब्स एंड एवरीथिंग इज़ विजिबल। इसकी बहुत ज़्यादा malnutrition की वजह से इसको अदर डिजीज़ लाइक एनीमिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस सब कुछ हुआ हुआ। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ग्रोथ रिटार्डेशन, मार्क्ड मसल वेस्टिंग, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, द फेस इज श्रिवल्ड एंड हैज़ नो बकल और फैट पैड, थाइस पे, बटक्स पे एब्डोमेन इज प्रोट्यूबरेंट। अडीमा नहीं होता, स्किन और हेयर चेंजेस भी नहीं होते, वो क्वाशोकोर में होते हैं, क्वाशोकोर के स्पेसिफिक है। साइंस में यू विल सी दैट इज ग्रोथ फेलियर, वेट बिलो 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट। क्वाशोकोर में भी वेट लॉस होगा बट नॉट बिलो 60%। एंड द फेस इज वीजेंड, श्रिवल्ड लाइक लिटिल ओल्ड मैन फेस या मंकी फेस। There will be anemia, rickets, respiratory infection, tuberculosis, measles. There are all super added infections, there are super added diseases, super added signs. How can you prevent it? Obviously detection and early malnutrition को कंट्रोल किया जाए, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग दी जाए, प्रॉपर वेनिंग दी जाए, उसकी इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हो, और उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाया जाए, उसको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करके। क्वाशोकोर का और मरासमस का डिफरेंस देखेंगे। दिस इज द 2 year old child presents with progressive weight loss but not marked weight loss, not below 60% of the normal weight। ठीक। edema of the feet and there is muscular atrophy, loss of skin turgor, क्योंकि edema हो रहा है हर जगह, तो skin turgor is lost। hypothermia, he has dark disco emitting skin rash over most of the pressure points of his body। it occasionally occurs between 1 to 5 years of age। बिलो 2 नहीं होता, 1 to 5 years of age, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा बट इट्स नॉट नेसेसरी, उससे कम भी हो सकता है। देयर विल बी जनरलाइज्ड एडिमा, ग्रोथ फेलियर एंड द चाइल्ड इज वीक अलॉन्ग विद साइकोमोटर चेंजेस। he would have an apathetic attitude and irritable। यहाँ भी होगा स्किन चेंजेस और हेयर चेंजेस यहाँ पे हैं, ठीक है। हेयर चेंजेस फाइन, स्ट्रेट, स्पार्स, डिस्कलर्ड हेयर। ब्लू स्टूल्स यहाँ पे बच्चे को होंगे ड्यू टू इन्फेक्टिव डायरिया या सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसीज की वजह से। फ्लैंकी पेन, डर्माटाइटिस, स्किन चेंजेस जैसे बताया, हाइपर पिगमेंटेशन ऑन कवर्ड एरियाज, अल्सर्स ऑन ओपन सोर्स में भी प्रेजेंट साइंस ऑफ विटामिन डेफिशिएंसीज अलॉन्ग विद लिवर विल बी इनलार्ज्ड, फैटी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। It can lead to several complications like hypothermia, hypoglycemia, cardiac failure। Cardiac failure क्यों? Because the extracellular fluid volume is raised as there is edema, प्रोटीन नहीं है तो edema हो रहा है, extracellular fluid volume बढ़ रहा है, it can lead to cardiac failure, watery diarrhea, abdominal distension। So here is the difference between marasmus and kwashiorkor that we would discuss। ये क्वाशोकोर में अंडरवेट होता है बट मरासमस इज लाइक बिलो 60%। edema is always present in kwashiorkor, abscellene and muscles fat is present, muscle wasting and loss of subcutaneous fat। यहाँ पे monkey face and old man face है मरासमस में, यहाँ पे puffy moon face है। hair changes are present, skin changes are present, यहाँ skin and hair are normal। miserable looking and apathetic, face alert, poor appetite, यहाँ पे appetite उसकी better होगी, and skin shiny and edematous as in case of kwashiorkor there would be edema, but यहाँ in marasmus would be loose and wrinkle। बायोकेमिकल टेस्ट करा सकते हैं, there would be hyperproteinemia, albumin ग्लोबिन रेशो भी कम होगी। हाउ वुड यू मैनेज? इनिशियल मैनेजमेंट तो ये है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, उसकी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बैलेंस किया जाए, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी को करेक्ट किया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए, उसे उसकी फीडिंग को प्रॉपर बनाया जाए, इमोशनल फिजिकल सपोर्ट दी जाए, एंड मदर शुड बी ट्रेन टू कंटिन्यू केयर एट होम, फॉलो अप फॉर 4 to 6 months। एंड एमरजेंसी केसेस में अगर बहुत बुरी सूरत हाल में आती है तो सबसे पहले उसको रिससिटेट करते हैं, उसके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं, एंड देन वुड करेक्ट इट्स हाइपोग्लाइसीमिया। इफ़ देयर इज़ एन इन्फेक्शन वुड बी कंट्रोल प्रॉपरली। हाइपोथर्मिया ऑब्वियसली अब उसकी फैट नहीं है तो वो टेम्परेचर भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता, कंट्रोल वी हैव टू टेक मेजर्स टू कंट्रोल हाइपोथर्मिया। कैंगरू मदर केयर जैसे दी जाती है। सीवियर एनीमिया को कंट्रोल किया जाएगा by giving either supplemental iron or food that is rich with iron, corneal clouding and ulceration, that is vitamin A deficiency, so we can give supplementations of vitamin A। Dietary management, and there are some feeding formulas that would help control as malnutrition, and this is all about malnutrition। Jazakallah khair।